Hello guys, welcome again to my channel. Today again I am here with you with a new video of class 7th science. As you have seen the name, the living world of the book of science and technology class 7th. So in this video I will tell you the chapter number 1, that is nutrition in living organisms, that we will discuss of plants. There are two chapters, nutrition in living organism, in plants and in animal and man, but in this video we are going to discuss about this chapter, that is of 13 pages only, with including bookwork etc. So this is the first page, that is nutrition in living organisms, plants. In class 6, we have already learned that food is essential for living organism. I forgot to tell you one thing, that we will discuss this chapter in two parts. So, they are discussing about class 6, that already you have learned that food is essential for all living organism. We also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral are all important components of the food. Which are the main components of our food important, that is carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals, right? And the components, now they are discussing about what is nutrient, that is the component of food are necessary for our body and are called nutrients, which carbohydrate, protein, fats, minerals are all important components of our food. These components of food are necessary for our body and is called nutrients. Now what is the function of nutrients? Nutrients enable living organism to build their bodies. Means जो nutrients हैं वो they give us this much energy that we can grow, we can repair our damaged parts of the bodies, we can provide the energy to carry out the whole life process. As if suppose you are having a fast, means breath, and on that day you feel very sick. Why? Because you have not got this much energy that you can feel very energetic. But if you are eating food, then you may have, then you not may have, then you feel very energetic. Now its nutrients are taken in through their food by living organisms and utilized in their bodies. The process of obtaining and utilizing food is called nutrition. Okay, here they have told us व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. जब भी हम कुछ ऑब्टेन करते हैं फूड, ठीक है, उसको मतलब हम न्यूट्रिशन ये रहा, जो जिस प्रोसेस से हम फूड खाते हैं और उसे हम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके, तो जो ये है मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, जो मोड है ऑब्टेनिंग करने का, जो मोड है न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने का, प्राप्त करने का बॉडी के द्वारा, बॉडी के थ्रू, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी में? ऑटोट्रॉफिक, that is autotrophic nutrition, and heterotrophic nutrition, right? So we will discuss about autotrophs first. That is, it is a mode of nutrition in which organism can make their own food. First of all, what are the examples of what does autotrophic means? As you can see here, autotrophic is a word that is taken from the Greek, that is auto and trophe. It was not earlier trophic, it was troph a. Okay, so auto means here self, and here it means nutrition. Right? So all the things means self nutrition. The plants that can prepare their own food without help of anyone is called autotrophic. Auto
right? So some of the examples are, we know that plants, but not whole plants, सिर्फ वो plants which contain chlorophyll. वाई, अगर देखो बाकी प्लांट्स क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इट शोज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. photosynthesis, right? So here means plants, only green plants. Why green? Because photosynthesis is of green color, right? So and some bacteria also prepare their food, only some, not all. Sorry. Then is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition here it is, ये ऑपोजिट होता है ऑटोट्रॉफ्स के. हेट्रोट्रॉफ इधर देखते हैं, हेट्रॉन, इट वाज नॉट हेट्रोट्रॉफिक, it was not trophic, it was heteron, okay, heteron. So it is a mode of nutrition in which organism cannot prepare their food on by own, they depend on others. Like we are now you will think हम तो खुद ही बनाते खाना या फिर मम्मा बनाते खाना, है ना? नहीं, वो खाना जो बनाते हैं वो भी कहीं से आता है, जिसे हम कहते हैं प्लांट्स वगैरह कहते हैं, ठीक है? प्लांट से आता है, कुछ एनिमल्स से भी आता है. तो वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट. एंड हम ह्यूमन्स क्या हैं? वी आर एनिमल्स. बस इस हमें फ़र्क क्या है? वी हैव माइंड, दे डोंट हैव माइंड. Right, see here there is a conversation between plant, means plant has said something and the animal, that is deer, it has said something to us. That is, plant, I can prepare my own food by using water and carbon dioxide and the presence of sunlight that is captured by chlorophyll. I can prepare food on my own. I depend on plant for food. Okay, modes of nutrition. So we will do this one first. So here it is, mode of nutrition. दो तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, दैट आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है, उसमें भी आगे सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक के सब पॉइंट्स हैं, ना कि ऑटोट्रॉफिक के. सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक के आगे सब पॉइंट्स हैं. कौन कौन से हैं? सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक. अब हम इसमें इनके एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो हमें इनमें एग्जांपल्स क्या क्या आती हैं? सेप्रोट्रॉफिक में फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, सम बैक्टीरिया. पैरासाइटिक में डॉडो. होलोजोइक में अमीबा और ह्यूमंस. ठीक है, तो हम इनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे पर बाद में. Photosynthesis for making food process. I am going to tell you till where I'll going to tell you. We will read up to insectivorous plant today, means till page number 5, and rest will be in part 2. So, photosynthesis, food making process in plants. There is only food photosynthesis by which the plants can prepare their own food, and photosynthesis is present where the chlorophyll is present. Okay, the synthesis of food in plant occur in their leaves. जो भी जितने भी फूड में अगर जितने भी प्लांट हैं उसमें अगर फूड अकर होता है तो वो लीव्स में होता है. लीव्स उनको स्टोर करके रखते हैं. आई विल शो यू इवन हेयर ऑल्सो. हेयर सी इन दिस आई विल शो यू. Okay, hence leaves are also called food factories of the plants. leaves को food factories of the plant कहा जाता है क्योंकि इसमें फूड बनता है और स्टोर भी होता है. The leaves have a green pigment called chlorophyll. जिनके पास क्लोरोफिल होगा वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. राइट, तो
it helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used by plants to synthesize their food using carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. Means जो भी मतलब जितने भी leaves हैं जो food बनाते हैं वो एक sunlight से energy कैप्चर कर लेते हैं, ले लेते हैं, उससे अपने स्टोर कर लेते हैं और जो ये एनर्जी है ये प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। और इस प्रोसेस किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ये अपना फूड बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, ये भी ग्रीक वर्ड है जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। किसी भी चीज को कंबाइन करना, मतलब लाइट को कंबाइन करना। देखो एज इट टेक प्लेस, ये ज़्यादा ही मोटा हो गया थोड़ा सा, जस्ट वेट। हाँ देखो, ये एज इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन क्या है, देखो पहले मैं आपको अगर इसकी पिक्चर दिखाऊं, ये देखो, वी विल कैप्चर ओनली दिस वन इमेज, सो आई शुड यूज पिंक कलर, ओके। सी दिस इज अ फ्लावर, राइट। ये हमारे पास लीव्स हैं। जो ये सनलाइट है, इट कैप्चर इट्स एनर्जी, ये कैप्चर करता है एनर्जी। और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होती है इन द एटमॉस्फेयर, इट टेक्स इन एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट। और जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इधर से हमारे पास वाटर भी आता है एज अंडरग्राउंड। जब भी हमारे पास रेन होती है ना, तो क्या होता है, अंडरग्राउंड में द वाटर गोज, यस, तो उसमें वाटर जाता है और पानी वहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है। और जब स्टोर हो जाता है तो यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ऑक्सीजन जो थी तो उसकी थोड़े पास, इसके पास अभी रह भी गई, ठीक है। वैसे तो ये बाहर जाती है, इट गोज आउटसाइड, बट थोड़ी बहुत ही रह जाती है। और जो पानी है वो भी इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर पहुँच से ये भी लीव्स में जाता है। तो व्हाट डज इट मेक ग्लूकोज। ग्लूकोज इज देयर फूड, ओके। सनलाइट से एनर्जी भी इसके पास आती है। तो ये सारा क्या करता है, सनलाइट एनर्जी क्या होगी सनलाइट की, दैट विल बी हीट होगी। अगर देखो हम ऐसे तो हम कच्चा तो बहुत कम खाते हैं, ठीक है। इसमें आया, मैं आपको फिर से थोड़ी सी साफ सी डायग्राम में करके दिखाती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, क्या देखो, जो सनलाइट है, पहले हम देखते हैं वाटर, इसमें क्या गया हमारे पास, वी विल राइट ऑल द थिंग्स, वाटर, ओके। मे आई राइट दिस एज इट्स फॉर्मूला है H2O। हमारे पास अभी क्या है, H2O, ठीक है। ये इसके पास गया, फिर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ गई, बाहर, ठीक है। कार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या आई, इन। और हमारे पास सनलाइट की क्या आई, हीट। सनलाइट की हमारे पास हीट आ गई, तो इसने क्या बनाया हमारे पास, दैट इज ग्लूकोज। क्या बना के दिया इसने हमें, ग्लूकोज बना के दिया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एज यू कैन सी हियर, दे हैव गिवन अस द क्वेश्चन। What does the question tells here about
कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें वाटर प्लस किया तो जिसमें हमें सनलाइट भी मिल गई, क्लोरोफिल भी मिल गया। ठीक है, उसने क्या बनाया, एक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज आर ग्लूकोज, और उसने क्या बना दिया, ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमने इसको दिया, इसको मिला, और इसने क्या बनाया एज अ फूड, दिस वन। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज ये ले लेती है और ऑक्सीजन ये दे देती है हमें। ठीक है, raw material for photosynthesis. From the above equation, it is clear that carbon dioxide and water are the raw material for photosynthesis, right? For this process, chlorophyll and presence of sunlight are also necessary. Yes, अब रॉ मटेरियल हम देख रहे हैं क्या क्या है। देखो, हमें पता लग गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो है तो रॉ मटेरियल, और चाहिए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। और फॉर इस प्रोसेस के लिए हमें क्लोरोफिल भी चाहिए, और सनलाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर मतलब जब तक फूड है लीव्स में, ऑल द रॉ मटेरियल नीड टू रीच देयर। अगर आपको फूड चाहिए तो प्लांट को अगर फूड चाहिए तो दे नीड दी रॉ मटेरियल कि वो वहाँ पर जाके पहुँच जाए, राइट। तो हमारे पास अब इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, वी आर गोइंग टू सी दैट इज वाटर एंड मिनरल्स। तो जो भी दीज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, ये देखिए अब हमारे पास है रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या होता है, मतलब वेसल्स होती हैं जो मतलब पानी को लीव्स तक पहुंचाती हैं। वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। देखो, वेसल्स आर द ट्यूब्स दैट रन थ्रू आउट द रूट ऑफ टू द स्टेम, थ्रू द रूट टू द स्टेम। ठीक है, ये स्टेम तक पानी पहुंचाती है रूट की हेल्प से लीव्स में। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आपको चैप्टर 8 पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर 8 की अभी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, तो जब मैं बनाऊंगी तो आई विल एक्सप्लेन इट वेरी वेरी क्लियरली। ओके, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाता है पोर्स की हेल्प से, और जो ये टाइनी पोर्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। लीव्स को अगर आप माइक्रोस्कोप से चेक करोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो लीव्स में क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है, और उस पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा को भी आगे अभी वही स्टोमेटा को उस बॉडीगार्ड खड़े हैं, जो बॉडीगार्ड होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, उसे हम कह देते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास सनलाइट। सनलाइट क्या है, सनलाइट एक लाइट और एनर्जी है जो सन से आती है। सनलाइट वही है लाइट और एनर्जी जो सन से हमें मिलती है और आती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स हैं वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए, फूड को बनाने के लिए। दैट इज़ वाई जो फूड का प्रोसेस है, फूड के बनने का प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, मतलब जो कंबाइन करके लाइट हमें मिलती है उससे हम फूड बनाते हैं, तो उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल, जो लीव्स हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें पिगमेंट होता है। पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो प्लांट्स ग्रीन नहीं होंगे, अगर ग्रीन नहीं होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे और वो खुद अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आगे आगे हमारे पास डू यू नो, मैं इसका ये पढ़ती हूँ। सम प्लांट जो ग्रीन नहीं होते वो भी क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, पर ग्रीन कलर हमें दिखता नहीं है क्योंकि उसमें कोई और कलर का पिगमेंट होता है। यस, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पिगमेंट कोज द लीफ कलर सच एज रेड इन कॉलियस एंड पर्पल इन रेड कैबेज। However, such leaves can still perform photosynthesis. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ हरे प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर पाएँ। क्या होता है कि कई प्लांट्स में पिगमेंट होता है पर किसी और कलर का होता है, पर वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं।
However, some variated leaves have yellow patches. Such yellow areas on the leaf do not contain any chlorophyll. जहाँ कुछ लीव्स येलो कलर के होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं कंटेन करते, आज वो बिल्कुल सूखे होते हैं, ठीक है। यह फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जो फूड को सप्लाई करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चाहे उनको डायरेक्टली दे दे या इनडायरेक्टली दे दे, जो एनर्जी है सन की वो पास होती है ऑल सभी ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स के द्वारा। जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो हम सभी को लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होती है सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। कैन यू इमेजिन कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो हम मर सकते हैं। तो मतलब कोई भी मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि फोटोसिंथेसिस अर्थ पे ना हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? इनिशियल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का कार्बोहाइड्रेट है। व्हाट इज द मेन एंड इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट। वो एक नेक्स्ट गेट कन्वर्टेड टू स्टार्च whose presence in the leaf indicate occurrence of photosynthesis। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ये स्टार्च के आगे से कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी प्रेजेंस लीव्स में होती है, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या क्या कंटेन करता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके पीछे जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्रोटीन है, ये भी क्या कंटेन करते हैं? नाइट्रोजन दे कंटेन। अब ये नाइट्रोजन आता कहाँ से? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एयर में, बट जो प्लांट्स हैं वो उसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते। जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ना वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म ऑफ गैस में। नाइट्रोजन अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है पर प्लांट उसको अभी एज ए ही नहीं यूज़ कर सकते। जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो उसे एक यूजेबल फॉर्म गैस में, यूजेबल गैस में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अदर मोड्स क्या होते हैं? देखो मैं आपको बताने वाली हूँ हेटेरोट्रॉफिक, पैरासाइट और इंसेक्टिवोरस। जो प्लांट खुद का फूड नहीं कर सकते, जो उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं जिनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ऐसा कौन सा प्लांट है? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा कौन सा है? मतलब मार्बल और देवदार, ठीक है। ये हमें मतलब येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनमें मतलब कोई भी क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता। कस्क्यूटा एक पैरासाइट है। मैं आपको पैरासाइट भी बताती हूँ क्या होता है। पैरासाइट सिंस इट डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज हार्म टू दैट ऑर्गेनिज्म, दैट प्लांट ऑन विच इट ग्रो इज नोन एज होस्ट। जहाँ पर पैरासाइट मतलब जहाँ पर ये प्लांट रहकर कुछ भी खाता है, मतलब अपना रहता है, और जहाँ पर ये रहता है इसे हम होस्ट कहते हैं, और दूसरों को नुकसान भी पहुँचाता है, दैट आर होस्ट, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट? देयर आर प्लांट दैट फीड ऑन इंसेक्ट फॉर द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। आपने सुना होगा इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है उनका ट्रैप करने के लिए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, इस बुक में है अभी आपके पास। ये देखो, ये पिक्चर प्लांट है, इसकी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर देखो, इसकी स्ट्रक्चर एक मॉडिफाइड है। जब भी इंसेक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो इसको अंदर घसीट लेगा और क्या करेगा, मतलब इसके ना अंदर जूसेस होते हैं, इसके अंदर जूस होते हैं जो इसको निगल जाते हैं। और ये ना आप अगर देखो, अगर आप इसके अंदर जाओगे ना तो मतलब हमने वैसे इंसेक्ट्स की बात कर रही हूँ, तो जब इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा तो वो वापस क्लाइंब भी नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये इंसेक्ट को खाकर ही ये जीतता है, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। Thank you. Please like it, share it and subscribe if you haven't subscribed till for the further notification. So bye guys. Have a nice day.